गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर योग वाशिष्ठ के श्रृंखला के 11वें सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने साथ अपने मेंटर यतीन जोशी जी जुड़ चुके हैं। यतीन जी वेलकम। ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस आई वेलकम ऑल द ऑडियंस जो अपने साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे जूम पे, एंड ऑल द व्यूअर्स जो इन वीडियोस को, इस श्रृंखला को यूट्यूब पे देखते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। Brain, when it fires its thoughts, is likened unto the landscape of a thundercloud. And the synaptic cleft is the sky between the storm and the earth receptor site. And you see this foreboding dark cloud boiling in the sky. And you see electrical impulses moving through it, veins of electric light, and then you see it hit the ground. The brain looks like a thunderstorm when it is presenting a coherent thought. So no one has ever seen the thought. What they do see in neurophysics is that they see a storm raging around different quadrants of the brain. Those are areas that are mapped in the body and what the person must be responding to. A holographic image. Rage, murder, hate, compassion, love. The brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers, because the same specific neural nets are then firing. The brain is made up of tiny nerve cells called neurons. These neurons have tiny branches that reach out and connect to other neurons to form a neural net. Each place where they connect is integrated into a thought or a memory. Now, the brain builds up all its concepts by the law of associative memory. For example, ideas, thoughts, and feelings are all constructed and interconnected in this neural net, and all have a possible relationship with one another. The concept and the feeling of love, for instance, is stored in this vast neural net. But we build the concept of love from many other different ideas. Some people have love connected to disappointment. When they think about love, they experience the memory of pain, sorrow, anger, and even rage. Rage may be linked to hurt, which may be linked to a specific person, which then is connected back to love. We build up models of how we see the world outside of us. And the more information that we have, the more we refine our model one way or another. And what we ultimately do is tell ourselves a story about what the outside world is. Any information that we process, any information that we take in from the environment is always colored by the experiences that we've had and an emotional response that we're having to what we're bringing in. Who is in the driver's seat when we control our emotions or we respond to our emotions? We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis, if you suffer on a daily basis, if you give reasons for the victimization in your life, you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together no longer wire together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. When we start interrupting and observing, not by stimulus and response and that automatic reaction, but by observing
the effects it takes, then we are no longer the body, mind, conscious, emotional person that's responding to its environment as if it is automatic. Does that mean emotions are good or emotions are bad? No, emotions are designed so that it reinforces chemically something into long-term memory. That's why we have them. All emotion is holographically imprinted chemicals. The most sophisticated pharmacy in the universe is in here. There's a part of the brain called the hypothalamus. And the hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that match certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides. They're small chain amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. The body is a protein-producing machine. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization. There's chemicals for lust. There's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the moment that we experience that emotional state in our body or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide that then releases it through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now, every single cell in the body has these receptors on the outside. And one cell can have thousands of receptors studding its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally, like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor, and kind of like a doorbell buzzing, sends a signal into the cell. It's party time! What happens in adulthood is that most of us who've had our glitches along the way are operating in a emotionally detached place, or we're operating as if today were yesterday. What is it? Mixed. In either the disconnected place or the overly emotional reactive place, because they've gone to an earlier time in reality, the person is not operating as an integrated whole. Along the outside of the cell are these billions of receptor sites that are really just receivers of incoming information. A receptor that has a peptide sitting in it changes the cell in many ways.
It sets off a whole cascade of biochemical events, some of which wind up with changes in the actual nucleus of the cell. Hi, when I grew up, I want to become a photographer just like you. Oh, Got any tips? take that picture. Thanks. Each cell is definitely alive, and each cell has a consciousness, particularly if we define consciousness as the point of view of an observer. There is always the perspective of the cell. A few years later. In fact, the cell is the smallest unit of consciousness in the body. I'm hungry. Oh yeah! We've commandeered an entire farming planet! Yeah, keep it coming, keep it coming! Yeah! Oh yeah! Well, my definition of an addiction is something really simple. Something that you can't stop. No, make me suffer, please. I wanna hurt. We bring to ourselves situations that will fulfill the biochemical craving of the cells of our body by creating situations that meet our chemical needs. It always happens to me. Why? An addict will always need a little bit more in order to get a rush or a high of what they're looking for chemically. Don't tell me to calm down. You're always bossing me around. So my definition really means that if you can't control your emotional state, you must be addicted to it. I knew this was gonna happen. That's not what we agreed upon. You're not going to screw me. Read the contract, You dear. won't do anything about it, so I No, will. no, ma'am. Don't dip your half-eaten shrimp back into the cocktail sauce. Screw you and your health codes. I am the bride's sister. I'll stick my ass in the cocktail sauce if I damn well please. Come on. I want you to get out there and serve and make sure everybody has a full laugh. Fun, fun, fun. Listen, you won't do anything about it, so you won't get this Photographer just like you. Let me show you what women want. What is reality? What is no real? So how can anyone really say they're in love with a specific person, for example? They're only in love with the anticipation of the emotions they're addicted to. Because the same person could fall out of favor the next week by not complying. My goodness, doesn't that change the landscape of our emotional outlook on personal needs and identities? Oh, yeah. Come here. No. You got the punchline wrong. It's a photographer's joke. Go on about your music. Are you okay? Right, I thought that could have been some girl. When? Now.
I was with the groom. Hey, Akurito! I'm sorry. I was with the groom just now. Yeah, he loves Paulette. Where? Polacks, they all look the same in a tux. You're not Polish, right? Hi. Thanks. Here. This will help. Oh, thank you. No problem. That was in my mouth. Forget it. So, what's your name? Elliot. Hi. Yeah. It's I'm Amanda. Hey, Amanda. I should have asked you what your name. You photograph a lot of weddings? Yeah, I hate it. I'm doing the thing again with my hands. I'm sorry. We are emotions, and emotions are us. Again, I can't separate emotions. When you consider that every aspect of your digestion, every sphincter that opens and closes, every group of cells that come in for nourishment and then moves out to heal something or repair something, those are all under the influence of the molecules of emotion. I mean, it's this total buzz. So you ask if emotions are bad. Emotions are not bad. They're life. They color the richness of our experience. It's our addiction that's the problem. The thing that most people don't realize is that when they understand that they are addicted to emotions... Another drink? It's not just psychological. It's biochemical. Think about this. Heroin uses the same receptor mechanisms on the cells that our emotional chemicals use. It's easy to see then that if we can be addicted to heroin, then we can be addicted to any neuropeptide, any emotion. To the groom! To the groom. Dude. What's up, guys? What's up, man? Hello. What do we need? Some boxes. Put out! Yeah, baby! The relevant search command that's going on is related to finding a certain emotional state. I mean, we can't even direct our eyes without having an emotional aspect to it. Oh, gosh. She wouldn't fall for me. Oh, mama! Woo! What the hell are you waiting for? Come on, you little pussies! Jeez, I can't believe you guys! What are you? Ooh, come on, just get the hell out of the way! Hi there, honey! Come on, baby, you know you want it. Oh, don't give me that look. What about people who are addicted to sex? Hello there, big boy. Is there a rocket in your pocket, or are you just happy to see me?
the offensive equipment, all right? These people want to hear some. I know they're gonna play some. You can't have a Polish wedding without polka music. No, would you leave it alone? Keep your. How can you have a Polish wedding without Polish music? Hands off my equipment! Like I said before, it ain't a Polish wedding without a polka. Welcome back. So that was our 11th day start and कुछ लोगों को होगा अरे यार योगोष्ठी सुनने आ गए ये सब क्या चल रहा है। हाँ, तो जब अपने अंदर का जो सीकर है ना वो कुछ चीजों को देखता है तो जो कुछ भी देखते हैं उसमें से भी ज्ञान ही प्राप्त होता है। हाँ, सो आज हमने देखा कि क्या क्या हुआ। तो कहते हैं कि जो अपने अस्तित्व के अलग अलग स्तर होते हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में भी हमें बताए जाते हैं। तो बोलते अलग अलग स्तर पे जो अपना ब्रेन होता है, अपना मेमोरी होता है, अपनी बॉडी होती है, उस इंफॉर्मेशन को अगर अंदर जाके देखें तो वहां पे ब्रेन होता है और फिर अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। वो अलग अलग न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ वायर्ड से कनेक्टेड होते हैं। एंड जो हम लोग इमोशंस बोलते हैं, जो अपने मेमोरीज बोलते हैं, वो अलग अलग केमिकल्स के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर होती है ब्रेन के अंदर एंड उसी को रीयूज करते हैं। तो जब भी कुछ चीज हमें बाहर से स्टिमुलस करती है, जैसे अपने पंचेंद्रियों से, अपने 5 सेंसेस से हम लोग चीजों को, इंफॉर्मेशन को अपने रिसेप्टर्स के द्वारा और अपने पेप्टिडाइड्स के पीछे जो पेप्टिडाइड होता है उसके द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो वही फिर चीज ब्रेन में जाके पास ऑन करके वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रीवायरिंग वायरिंग होती है और वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहां पे चलते हैं और उसी से जो रिस्पॉन्स आता है, जो रिएक्शन आती है, वही से फिर वो सारे इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो उन्होंने इस सब को दिखाने के लिए ना दे हैव डिपिक्टेड अ मैरिज सेरेमनी। उन्होंने एक मैरिज का जो सेरेमनी होता है उसको दिखाया है और उसमें दिखाया है कि डिस्पाइट ऑफ वन इवेंट, जो एक है जो शादी का इवेंट चल रहा है और कैसे अलग अलग लोग उसमें जो उसी मूवमेंट में स्थित है और उनके सपने अपनी अपनी कैसे अलग अलग रियलिटी है। कोई अपनी रियलिटी सेक्स में ढूंढ रहा है, कोई अपनी रियलिटी गुस्सा करे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करे, कोई गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑफ थिंग्स। अमांडा होती है, उसके मन की स्थिति वैसी नहीं होती है तो उसको जो देखती है उसको बहुत अलग ही तरीके से परसीव करती है नो। तो अलग अलग एक ही जगह पे एक ही इवेंट होने के बावजूद भी उन सबका अपना अपना ब्रह्मांड अलग अलग होने की वजह से, जैसे यतीन जी ने हमें बताया था, वो सब लोग उसी सिचुएशन को अलग अलग एज अ रियलिटी परसीव करते हैं। तो दिखाते हैं कि जो अपने फैटी लोग होते हैं जब वो किसी को और देखती है
तो उसको अपने कैमरे से वो सब लोग ऐसे फैटी फैटी दिखाई देते हैं, बिकॉज उसके मन में वो खुद फैट है, उसके लिए उसको ऐसे ही दिखाई देता है। तो ये सारा जो चीज है, कोई कुछ लोग होते हैं जो दे आर वेरी फोकस्ड ओनली ईटिंग ईटिंग ईटिंग, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। पेट भर चुका है, डकार देता है, लेकिन वो दिल मांगे मोर वाली स्थिति भी उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो बोलते डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके इमोशंस होते हैं, चीजें वही चीज दिखाई देती है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से जो अपने अंदर होता है उसके तरीके से तो उसको हम लोग परसीव करते हैं। तो बोलते इमोशंस इन इटसेल्फ, जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, दैट इन इटसेल्फ आर नॉट गुड और बैड। इमोशन और बैड नहीं होते, उसका जो अनुभव हमें मिलता है उसको हम लोग अपनी मन की परिस्थिति के अनुसार उसको गुड और बैड बना देते हैं। ये भी बात उन्होंने यहाँ पे कही। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज इसकी दिखती है। That is what they try to depict in this entire marriage ceremony. So that was whole आज का वही था। इसके बारे में डिटेल में फिर वो बताएंगे कल में कंटिन्यू करेंगे कि हाउ दिस एक्चुअली अपने मन के अंदर की स्थिति कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट लर्निंग दैट हम लोग योग वशिष्ठ अपने कोर्स, अपने लाइफ का फुलेस्ट पोटेंशियल अगर हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि बाहर की चीजें चेंज मत करने जाओ, वो ऐसे की वैसे रहेंगे। आपका पर्सपेक्टिव उसके बारे में अगर चेंज हो जाए तो देन जो सफरिंग जो होती है ना, जो अपने को दुख होता है चीजों से, जो हम लोग चीजों में अटक जाते हैं, अटैचमेंट में अटक जाते हैं, उससे आप मुक्त हो जाओगे। ये सब चीज देखने में आएगा। Now I'd like to request Yatin ji, over to Yatin ji, that please continue with our next part of the series श्रृंखला जो कि योग वशिष्ठ है, उसके बारे में स्टोरीज, कहानीज, एंड we can also try to relate what we have seen with the योग वशिष्ठ। over to you Yatin ji। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। ये डॉक्यूमेंट्री में एक पॉइंट आया था जो मैंने नोट किया था, वहाँ पे उन्होंने कहा था योर माइंड इज नॉट योर माइंड और इट्स नॉट योर ओन माइंड, ऐसा एक स्टेटमेंट आया था। शायद अभी तक कभी तो उसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि हमारा अपब्रिंगिंग जिस तरह से होता है, हमारे साथ जो घटनाएं होती है, ठीक है, हमारी जो जीन्स है, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिस्टर्स, ये सारों से जो कुछ भी हमारे अंदर आया है और उसके बाद में हमारे जीवन में जो जो भी कुछ होते गया है, वही लेके आज हमारा मन बन चुका है ना। वरना हमारा मन तो हमारा है ही नहीं, एक्चुअल हमारा नेचर कुछ और ही है, लेकिन ये एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनते गए तो आज हम वही है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं, वो सारा जो सार आता है उसमें, वो कहीं और से आया है। आज जैसे सोमेश्वर और मैं अगर कुछ सेवा कर रहे हैं या इस पे बात कर रहे हैं तो कहीं तो हमारे ऊपर कैसे इंप्रेशंस आए हैं। आज आप बैठे हैं, मैंने ये बात पहले भी कही थी, आप बैठे यहाँ पे देखने के लिए, तो कहीं पे आपके ऊपर ये इंप्रेशंस बने कि हाँ कुछ योग वशिष्ठ में हो सकता है या कुछ नॉलेज में हो सकता है। वरना दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आपने इतने लोगों का अप्रोच भी किया, सभी के सभी नहीं आए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज, उन्होंने जो देखा था वो हिसाब से अलग अलग होती है ना। तो ये बड़ा सुंदर, ये तो हम जो जानते हैं उसके बारे में अभी साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है करके। हमारे लिए इतना सफिशिएंट है तो है बस इस तरह से जाए करके। हम लोग अभी वो कहानी कंटिन्यू करते हैं लीला सरस्वती की। तो जो नए आए हैं उनके लिए फिर से एक बार 1 मिनट में समरी। हम योग वशिष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। योग वशिष्ठ ग्रंथ ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में कहा गया है। रामायण का एक पार्ट होता है। जब रामायण में ये कहानी होती है कि श्री राम जी अपनी शिक्षा पूरी करके और फिर भ्रमण करके घर में आते हैं, तो उस वक्त उन्होंने जो भी देखा होता है भ्रमण के वक्त, जो दुनिया के सत्य है, सच है कि जहाँ पे लोग अपने मुक्ति के लिए, अपने आनंद के लिए हर तरह के प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सारे प्रयत्न उनके मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं। सारी इच्छाएं वो लक्ष्मी, स्त्री, पुरुष, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, है ना, इन सारी चीज़ों में वो ढूंढते रहते हैं। और उनको, श्री राम जी को ये समझ में आता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे लग के कभी सुख मिलने वाला नहीं है, कभी आनंद मिलने वाला नहीं है। तो कहते कि अगर इनमें आनंद ही नहीं है तो फिर मैं भी अपने जीवन में जो कुछ भी करने वाला हूँ, चाहे आगे जाके राजा बनूंगा, आज राजकुमार हूँ या कुछ और करूँगा, तो इन सारी चीज़ों में अगर कहीं सुख है ही नहीं तो फिर क्यों जिया जाए, क्यों कोई कुछ प्रयत्न करे जीवन में। आराम से बैठे रहे और बस सब कुछ छोड़ दें
और इवन बैठे रहना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके शरीर तो है ही, शरीर को तो अपना धर्म होता है वो निभाना होता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि वैसे भी शरीर भी छोड़ के ही जाने वाला है, तो ये सब चक्कर खा खा के बाद में कभी शरीर छोड़ना है तो मैं अभी शरीर छोड़ देता हूँ। तो उनको फिर जो इस जीवन के बारे में ज्ञान दिया जाता है विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि द्वारा, तो वो ज्ञान मतलब योग वशिष्ठ है कि क्यों ये जीवन, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन आप जो देख रहे हैं तो सच्चा आनंद कहाँ है, दुख की कंसेप्ट क्या है, ये सारी बातें उनको समझाई जाती है योग वशिष्ठ में। तो इसमें हम एक कहानी देख रहे थे जो उत्पत्ति के बारे में, कि ये सारा जो क्रिएशन हम देख रहे हैं वो क्रिएशन है क्या। तो उसमें लीला रानी और उसके पति पद्म राजा, इनकी एक कहानी थी, अभी भी चल रही है। तो कहानी में लीला ने कभी देवी सरस्वती का ध्यान किया था, उसने चाहा था कि उसके पति हमेशा उसके साथ रहे, और अगर उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है तो उनका शरीर भी वहीं पे रहे और देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो। उनके पति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद फिर वो देवी से आवाहन करके देवी को बुलाती है, फिर पूछते कि मुझे अपने पति का अगला जन्म दिखाइए। तो उसको अगला जन्म दिखाया जाता है, और उस अगले जन्म में वो देखती है कि अपना पति अभी भी कुछ कहीं पे राजा है, उसका नाम विदुरथ है, अभी नया राजा है, पहले का नाम पद्म था, अगला नाम विदुरथ है। तो वो विदुरथ राजा कहीं पे राज कर रहा है, उसके सारी प्रजा, सारे मंत्रीगण वगैरह ऐसे ही है जो ऐसे दिख रहे हैं। तो ये थोड़ी कंफ्यूज होती है, फिर पूछते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आ, मैं अभी तो सारे यहीं पे है, फिर वहां पे कैसे हो सकते हैं, एक साथ दो जगह इन लोगों का अस्तित्व कैसे है। तो फिर उसको बताया जाता है कि उसके राजा का जो पति का जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु के समय उसने अपने मन में जो कल्पना देखी थी वही आज उसके सामने है। तो यहाँ पे ना सत्य और असत्य के बारे में थोड़ी बात हुई थी कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो कहते हैं कि लीला रानी कहती कि जो मैं यहाँ पे हूँ सबको देख रही हूँ वो सत्य है, और जो मैंने आंखें बंद करके देखा वो असत्य है, वो सपना है। तो फिर उसको बताया जाता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम तुम्हें पिछला जन्म भी दिखाते हैं। और फिर उसको उसका पिछला जन्म दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक वशिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पत्नी अरुंधति, तो पद्मराजा जो था वो पहले वशिष्ठ ब्राह्मण था, और उसकी पत्नी अरुंधति मतलब ये लीला थी। तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु होके 8 दिन हुए हैं, और 8 दिन होने के बाद ये उनको जाके देखती है उसकी दुनिया, और वापस वहां से आती है। फिर कहती कि अगर उसको मृत्यु होके 8 ही दिन हुए, लेकिन हमने तो इतने कई सालों तक राज किए, तो ये कैसे हो सकता है। तो उसको फिर वहां पे टाइम और रिलेटिविटी की कंसेप्ट भी समझाई जाती है। अच्छा, इस पूरे जर्नी में उसको सारा ब्रह्मांड भी दिखता है, ब्रह्मांड का अलग अलग स्वरूप भी दिखाई देता है। तो ये सारी कंसेप्ट हमने अभी तक देखी थी, और यहाँ पे एक बात फिर से बताई जाएंगी, इंसिस्ट की जाती है कि ये जो भी क्रिएशन हम देख रहे हैं, ऐसा कहा गया है कि ये क्रिएशन हमारे हृदय आकाश में ही देखते हैं, इसको चित्त आकाश कहा गया है। मैंने अभी इससे पहले भी 3 तरह के आकाश कहे थे। एक होता है भूताकाश जो हम आज सब तरफ देखते हैं, दूसरा होता है चित्त आकाश जो हमारे अंदर ही होता है, और तीसरा है चिदाकाश की जिसमें ये सारे आकाश आ जाते हैं। हाँ, एक ही ब्रह्मांड नहीं, कई सारे ब्रह्मांड है जिसका कोई लिमिट ही नहीं, पूरा अनंत है। तो यहाँ से वो कहते कि चलो फिर से जाते हैं विदुरथ के पास, जो मेरा पति का अगला जन्म है, वहां पे जाके देखते हैं। और फिर वो वहां पे कैसे जाते हैं, उनके जो अलग अलग ब्रह्मांड के लेयर्स होते हैं, पानी का लेयर होता है, आग का लेयर होता है, वायु का लेयर होता है, आकाश होता है ना। ये सारे लेयर्स पार करके फिर वो ब्रह्मांड के एंड में जाके वहां से सारे क्रिएशन को देखते हैं कि कैसे अनेक सृष्टियां बन रही है, अनेक सृष्टियों के अलग अलग अपने अपने स्वरूप है वहां पे। मैंने हमेशा इस बारे में कहा है कि जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उतना सब पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारे ब्रह्मांड ही, ये भी लोगों के ही अपने अपने मन में ही जो देखे होते हैं वही उधर आजू बाजू दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिर जाके देखती है अपने विदुरथ के राज में जाती है, उस ब्रह्मांड में जाती है, और फिर देखते हैं वहां पे कि उस राज्य में, विदुरथ राजा के राज में युद्ध की तैयारी चल रही है। उसका जो पड़ोसी राजा होता है उसका नाम होता है सिंधु। तो सिंधु नरेश इसके ऊपर, विदुरथ के ऊपर हमला करने की ताक में है, और युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पे ये जाके वर्णन, युद्ध की तैयारी देखते हैं, और फिर युद्ध शुरू भी हो जाता है। युद्ध का वर्णन बहुत डिटेल में किया गया है। अगर ओरिजिनल योग वशिष्ठ पढ़ा जाए ना तो इतने पेजेस है कि आदमी कह देता है एक वक्त
कि अरे अब बस करो, इतना भी वर्णन नहीं सुनना है करके, है ना। उसकी तलवारों की और इसकी आवाज कैसे होती, किसने कौन सा शस्त्र फेंका, उसका जवाब कैसे दिया, कौन कहाँ जख्मी हुआ, और उसमें फिर ऐसे कई जो एक प्रिंसिपल्स जो है, मैं वो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा। तो एक प्रिंसिपल ये दिया गया है कि जो कौन कौन से राजा के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, हम लोग ये कहते हैं ना कि अपने शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप राजा के लिए लड़ते हैं तो आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। पर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन से राजा के लिए लड़ना चाहिए और किस वक्त स्वर्ग प्राप्ति होती है, मतलब कौन से टाइप की मृत्यु की वजह से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। तो कहा गया है कि अगर आपका राजा न्याय करने वाला हो, सद्वर्तनी हो, अच्छा है, तो उसके लिए आप लड़ोगे तो डेफिनेटली आपको स्वर्ग मिल सकता है। लेकिन अगर आपका राजा अन्याय कर रहा है, गलत कारणों के लिए युद्ध कर रहा है, या वो सच्चे मार्ग पे चलने वाला नहीं है और उसके लिए आप लड़ोगे, तो डेफिनेटली फिर आपको नरक ही नरक मिलेगा। उसके बाद मृत्यु के बारे में ये भी कहा गया है कि आप अगर किसी अच्छे कारण की वजह से लड़ रहे हो और उसमें मृत्यु आती है, आप अगर किसी अपने मित्र के हित के लिए, उसका भला करने के लिए लड़ रहे हो और वहां पे मृत्यु आती है, या फिर अगर आप आपके पास अगर कोई शरण आया है, ये भी हमने देखा है कि कोई शरण आता है आपको और उस शरणागत के रक्षा के लिए अगर आप लड़ते हो और उस वक्त अगर मृत्यु आती है, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये सारी बातें उसमें दी गई हैं योग वासिष्ठ में कहीं। एक छोटे से रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमने कई बार सुना है, तो उसका एक थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। तो यहाँ पे मृत्यु के बारे में ये सारी बातें होती हैं कि किस तरह की मृत्यु, किसके लिए लड़ना चाहिए, किसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। और फिर उन दोनों राजाओं का युद्ध शुरू होता है, तो युद्ध का वर्णन होता है। उसमें कहा गया है कि जो लड़ते वक्त जिनको डर नहीं होता, कोई भय नहीं है, तो उनकी जीत होने की संभावना ज्यादा होती है। जिनको भय होता है वो उनके हारने की संभावना होती है। ठीक है। ये नियम ना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, या मतलब जो तलवारों का या गन का, बंदूक का युद्ध है उसके लिए नहीं। हमारे जीवन में हम जब भी कोई युद्ध लड़ते हैं, जो चाहे प्रिंसिपल्स का हो, तत्वों का हो, या कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बीवी के साथ और पति के साथ छोड़ के, ठीक है, उस वक्त भय नहीं होना चाहिए। यूजुअली हमने ये देखा है कि हम किसी छोटा सा झगड़ा होता है, कोई केस होता है, कुछ होता है, लेकिन हमारे मन में भय बन जाता है कि क्या होगा, मेरा ऐसा तो नहीं होगा, मेरा वैसा तो नहीं होगा, और ये भय हमें वहां पे लेके डुबो देता है। भय ये चीज ऐसी है कि आपके जीवन में आपके हाथ में आने वाला सक्सेस जो फॉर श्योर है आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए ना, तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे काम ही करते हैं, अपनी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, पर वो कैपेसिटी के अनुसार हम काम करने जब जाते हैं, कोशिश करने लगते हैं, तो सबसे पहले आता है मन में भय कि अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं डूब हो गया तो क्या होगा, कहीं नुकसान होगा तो क्या होगा। ये सारी भय की बातें ये हमें लेके डुबो देती है। अगर आप देखेंगे आज कोरोना का जो स्प्रेड हो रहा है, उसमें भी कई जगह जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं और उसकी वजह से डेथ भी हुई है, तो उसमें वो कोरोना का अगर कंट्रीब्यूशन, वायरस का अपना कंट्रीब्यूशन कुछ है, पर उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस भय का है, उस डर का है कि मुझे कुछ हो गया तो अगर बार बार ऐसे कहते कि आपकी भावना इतनी स्ट्रांग होती, आप बार बार अगर उसके बारे में सोचेंगे, मुझे कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो डेफिनेटली होगा। हाँ, ये 3 स्टेप्स कहे गए हैं। यू यू सस्पेक्ट, यू एक्सपेक्ट एंड यू एक्सपीरियंस। हाँ, हम एक डर में रहते कि ऐसा कुछ होगा तो, ऐसा कुछ होगा तो, ये सस्पेक्ट करते हैं, हाँ, इट इज सस्पिशन। और फिर उसके बाद वो एक्चुअली हो जाता है कि हाँ आ गया करके, हो गया। और उसके बाद फिर हम देखना शुरू करते हैं कि हाँ सचमुच अनुभव हो गया उसका कि अरे हो रहा है। ठीक है। तो सस्पेक्ट एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट मतलब डर होगा, एक्सपेक्ट मतलब अभी ये हो जाना चाहिए, और अनुभव मतलब वो जो रियलाइजेशन है कि हाँ हो गया। इस तरह का जर्नी होता है। तो जब भी कुछ करेंगे ना, वो निडर बन के रहो। गुरुदेव ने हमेशा कहा है निडर बनो, निडर बनो। क्यों? भय क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो भावना रखे कि मैं कुछ करने वाला ही हूँ नहीं, मैं तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करने वाले तो वो है। ठीक है, जो भी कुछ होगा उनका कार्य है, उन्हीं के साथ हो रहा है और वही करवा रहे हैं, रिजल्ट भी उनका, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, वो सारा रिजल्ट उनका है। मेरा अपना काम बस बताए गए मार्गों पे चलना है। तो भय किस बात का? थोड़ा सोचिए। हमारे यहाँ ना बहुत शुरू में आल्टा फीलिंग में एक जो प्रोसेस होता था, उसमें सो वॉट करके प्रोसेस था, शायद सोहम सोमेश्वर जी ने किया होगा वो। तो उस प्रोसेस में ये बात करते थे कि देखो कुछ हुआ तो सो वॉट, हाँ मेरा ये हो जाएगा सो वॉट, मेरा वो हो जाएगा सो वॉट, इस तरह के प्रश्न मन में आते थे। तो खैर
यहाँ पे भय की बात कर रहे थे, तो जिनको भय नहीं है वो जीतते थे। और इस तरह के युद्ध में जो सारे वर्णन कहे गए कि ऊपर आसमान में सारे अप्सराएं और इंद्र के देव, दूत वगैरह सब खड़े रहते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो जीतेगा अच्छी तरह से उसका स्वागत किया जाएगा। इस तरह का पूरा युद्ध का वर्णन होता है। लेकिन अंत में विदुरथ राजा वहां पे उसकी मृत्यु होती है। अब वो मृत्यु से पहले ये सरस्वती और लीला उससे मिल लेते हैं। तो वो पूछता है कि मेरी मृत्यु क्यों होगी? तो कहते हैं कि तुमने तो मुक्ति की राह मांगी थी, तुम्हें मुक्ति चाहिए थी, तो तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो सिंधु राजा जो है उसने भी मेरी साधना की है और उसने विजय मांगा है, तो जो जो मांगेगा उसको वो देगा। सरस्वती देवी ने कहा है कि हमारा काम तो हम कुछ करते ही नहीं है। हाँ, इस बात को सुने ढंग से। उन्होंने कहा कि हम कुछ करते नहीं है, जो तुम मांगोगे वो देने के लिए हम तैयार रहते हैं, बस तीव्रता से मांगो, प्रयत्न करो, मिल जाता है। हमारा काम तो देने के लिए ही है। तुमने मुक्ति मांगी, तुम्हें मुक्ति मिली, उसने जीत मांगी तो उसको विजय भी प्राप्त हो गई। इतनी सिंपल सी बात है। तो वहां पे विदुरथ राजा कहता है कि ठीक है, अगर मेरी मृत्यु होगी तो कोई बात नहीं, पर मुझे फिर मेरा जो पहले का शरीर है, जो आपने मुझे बताया कि मैं वहां से यहाँ पे आया हूँ इस सृष्टि में, तो मेरा जीव यहाँ से वहां पे वापस चला जाए और मेरी ये जो अभी की पत्नी है लीला, उसको भी मेरे साथ आने की अनुमति दे। लीला भी, जो दूसरी जो लीला होती है, वो कहती है कि हाँ मुझे भी उनके साथ जाना है। तो सरस्वती देवी कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और उसके बाद फिर प्रार्थना, उसका युद्ध होता है, उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद यहाँ पे वो थोड़ा वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, मृत्यु कैसे होती है। तो कल शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, आज अगर समय मिलता है तो वो हम फिर से थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मुझे पता है मृत्यु ये सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसमें जितना पूछो उतना कम है, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो जो हो सकता है कोशिश करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि उसको यमदूत लेकर जाते हैं यम के पास। फिर यमराज कहते कि देखो इसका कर्म क्या है, इसका सब रिकॉर्ड दिखिए। तो बोलते कि नहीं, ये अच्छा भक्त रहा है, इसके जीवन में कुछ नहीं हुआ और इसने चाहा है कि इसका अगला जीवन उस राजा के रूप में हो जाए, जो वहाँ ये वापस चला जाए वहाँ पे पद्म राजा के पास। तो इसको छोड़ दो, इसको वहाँ पे भेज दो। तो वो राजा चला जाता है, अपने पुराने शरीर में आ जाता है। उसके बाद ये दोनों लीलाएं भी वापस चली जाती है। अभी यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जो पहली लीला थी, जिसको हम कहेंगे ज्ञानी लीला, हाँ, तो वो ज्ञानी लीला का क्या होता है? उसका शरीर तो वहाँ पे छोड़ के करीब करीब 1 महीना हो चुका होता है। तो उस समय में, उस दुनिया में 1 महीना हो चुका होता है, यहाँ पे पता नहीं कितना समय, वो लिखा नहीं था। तो उस सरस्वती को पूछते कि मेरे शरीर का वहाँ पे क्या हुआ होगा। तो सरस्वती कहती कि देखो, तुम्हारा शरीर अभी ये आतिवाहिक शरीर है। 2 तरह के शरीर कहे गए हैं, सूक्ष्म शरीर और या जिसको आतिवाहिक शरीर कहते हैं, और एक जो फिजिकल बॉडी होती है जो हम सब लोग देखते हैं। तो वो जो फिजिकल बॉडी थी, वो तो तुम्हारा शरीर, उसका तो अभी वो सूख गया होगा और वो खत्म हो चुका है। तुम्हारे मंत्रियों ने फिर ये सोचा कि रानी अपने पति के मृत्यु के दुख में खुद उसके प्राण चले गए, उसका शरीर अभी छूट गया, तो उन्होंने तुम्हारा अंतिम संस्कार वगैरह सब कर दिया। ठीक है, अभी वो शरीर तो नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारा अभी सूक्ष्म शरीर है, आतिवाहिक शरीर है। तो अभी तुम चलो वहां पे और इसे अपना फिर से रूप दिखा दो। तो लीला कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो ये आतिवाहिक शरीर है। तो कहती हाँ, तुम तो ज्ञानी हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा अपने शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम लोगों को दिखा सकते हो कि तुम हो करके। ये जो सारे ज्ञानी होते हैं ना, इनके साथ ये होता है कि जैसे वशिष्ठ ऋषि अगर देखे जाए, तो उनका शरीर ये फिजिकल शरीर नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर ही है, आतिवाहिक शरीर होता है। और आतिवाहिक शरीर में ही रहते हैं, उनका तो फिजिकल बॉडी कभी आया ही नहीं था। ओके, क्योंकि वो सीधे ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा ने उनको क्रिएट किया था। तो बाहर के लोगों को देखने के लिए तो एक दाढ़ी वाले शरीरधारी, हाँ, कपड़े पहने हुए ऐसा शरीर उनको लोगों को दिखता है, लेकिन अंदर में उनके लिए तो उनका कोई शरीर है ही नहीं। उनको उस शरीर से कोई वासना भी नहीं होती, कोई इच्छा भी नहीं होती। वो अपने एग्जिस्ट करते हैं एक आतिवाहिक शरीर के रूप में। तो लीला फिर वापस आती है और वो अपने आप को प्रकट करती है। उसके बाद पद्म राजा जो होता है उसका जीव वापस आ जाता है। और ये दूसरी लीला होती है उसकी, विदुरथ राजा की पत्नी, वो भी वहां पे आती है।
तो लोगों को फिर आनंद होता है कि हाँ ये पहली रानी थी, ये खुद भी वापस आई और उसने अपने राजा को और एक लीला को लेकर आए, तो उसका उत्सव वगैरह मनाया जाता है। यहाँ पे ये कहानी एक तरह से खत्म होती है और उसके बाद फिर श्री राम जी के कुछ प्रश्न वगैरह हैं, तो हम वो थोड़ा बाद में देखेंगे। यहाँ पे ना एक चीज, एक शौक ले लीजिए, ये प्रश्न मेरे मन में आता है हमेशा और पता नहीं इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। कभी गुरुजी मिलेंगे तो उनसे पूछना है मुझे कि गुरुजी क्या, आई मीन आर यू रियल और आर यू अनरियल, ये प्रश्न मुझे उनसे पूछना है। ये आतिवाही की जब कहानी सुनते हैं ना, तो हमें तो दिखता है कि एक शरीर है करके, लेकिन क्या उनके लिए वो शरीर है या वो सचमुच भ्रम करके रखा है कि हाँ एक मैं तुम्हारे लिए दिखने के लिए हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, ये हूँ, नाक है, ऐसा है वैसा है। लेकिन क्या पता ना, ये हमारा भ्रम हो सकता है कि हाँ दिख रहे हैं सबको। वो समष्टि और व्यष्टि जैसे एक कभी उदाहरण आएगा उसके बारे में बात करेंगे कि सबको एक भ्रम बनाया गया है कि हाँ गुरुदेव है करके, पर पता नहीं असली रूप क्या है उनका, तो हमको तो पता ही नहीं, हमारे लिए दिखने के लिए उन्होंने किया है। तो क्या सिर्फ आतिवाहिक शरीर में ही है या फिर सचमुच शरीर है, तो इसका जवाब तो पता नहीं, वही खुद दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक गुरु तत्व, एक शरीरधारी आ गया है, वही हम उसको देखते हैं। तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कल्पनाएं, संकल्पनाएं इसमें बताई गई थी। और एक मिनट, मैं कुछ यहाँ पे मैसेज आया तो देख लेता हूँ। तो sorry, कहाँ पे था? हाँ, तो लीला पद्मा की जो कहानी, उसमें ये जो सारी बातें बताई गई थी, तो उसमें मृत्यु के बारे में भी पूछा गया था कि मृत्यु कैसे होती है। तो मृत्यु के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोगों की मृत्यु यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। एक होते हैं मूर्ख, कि जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया। दूसरे होते हैं साधारण योगी और तीसरे होते हैं असाधारण योगी, जो जीवन मुक्त है या उस तरह के लोग होते हैं। तो पहले जो दो लोग हैं योगाभ्यास करते हैं और उसके बाद उनकी यूँ कहा गया है कि जो ज्ञानी है उनकी मृत्यु एकदम एकदम ही आसान होती है। हाँ, और आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे अपने जीवन में आसपास में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, तो एक्सेप्शनल केसेस है कि जिन्होंने जीवन में एकदम सुख शांति से रहे हैं, प्रॉपर योगाभ्यास किया है, अपनी ध्यान धारणा की है, उनको कहीं हॉस्पिटल में जाके लंबे समय तक रहना पड़ा, ये बहुत कम केसेस में हुआ। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये लोग अगर जीवन में शुरू से लेके ढंग से रहे हैं, तो उनकी मृत्यु ऐसे हो जाती है बिना सफरिंग के। ना खुद को सफरिंग होता है ना दूसरों को सफरिंग होता है, ठीक है। बस 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म, जीवन खत्म हो जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, उनको भी नहीं, किसी और को भी नहीं। तो दूसरे हैं जो ज्ञानी होते हैं, वो अपना शरीर जब छोड़ते हैं ना, तो एकदम समाधि में जाके आसानी से अपना शरीर छोड़ देते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, उनको खुद को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन तीसरे जो मूर्ख होते हैं उनके मृत्यु के बारे में एक यहाँ पे ऐसे कहा नहीं गया कि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होता है करके, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन देखिए, जो बहुत गुस्सा करते हैं, बार बार चिढ़ते हैं, जो जिन्होंने सन्मार्ग का ज्यादा उपयोग नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी ये ज्यादा होती है उनके साथ। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 100% केसेस नहीं। पॉसिबिलिटी ये ज्यादा होती है कि उनकी मृत्यु ये काफी सफरिंग के बाद होगी, बहुत तकलीफ झेल झेल के, मतलब आप खुद को क्या दूसरों को भी लगता है कि अरे ये छोटे अभी कितनी तकलीफ दे रहा है, मुझे भी तकलीफ दे रहा है और खुद को भी तकलीफ दे रहा है, इस तरह की भावना लेके फिर वो मृत्यु होती है। तो मृत्यु का वर्णन किया गया है कि मृत्यु मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या होता है मृत्यु के समय। तो थोड़ा उसके बारे में भी सुनते हैं। ऐसा कहते हैं कि शरीर में जो अलग हर तरह के रस बहते रहते हैं और हमारे प्राण वायु होते, पंच प्राण होते, 5 तरह के प्राण होते हैं, तो मृत्यु के समय इन प्राणों में आपस में इनबैलेंस हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि समान वायु है वो सारे प्राणों को, सारे प्राण वायु को बैलेंस करता है शरीर में, और इनमें इम्बैलेंस होने की वजह से कहीं तो जो अलग अलग द्वार शरीर के 9 द्वार होते हैं, तो कहीं किसी द्वार से उसकी वो वायु निकल जाता है। कौन सी भावना है तीव्र होती है उस हिसाब से वो वायु उन द्वारों से निकलता है। तो वहां से एकदम बाहर चला गया, प्राण बाहर के बाहर चले गए तो वापस आते नहीं।
और इसीलिए उस समय मृत्यु होती है। तो क्या होता है एग्जैक्टली उस समय, ये जब शरीर में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो ये भी रस है, इनका भी प्रवाह अलग अलग तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है एक, और इम्बैलेंस होते होते फिर एक मोमेंट ऐसे आती है कि ये सब कुछ सहा नहीं जाता, प्राण चले जाते हैं, और इन रसों को बहने के लिए भी जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी भी नहीं मिलती, तो वो सारे शांत हो जाते हैं, धीरे 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 सब कुछ स्थिर हो जाता है। और ऐसा कहते कि उस वक्त सारी शक्ति वो इकट्ठा होकर अपने हृदय की तरफ खींची जाती है। ऐसा लगता है कि जो प्राण हमारे कहीं बिखरे पड़े हुए हैं वो हृदय की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि सारा जो प्रवाह होता है, हमारी प्राण शक्ति हृदय में रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके तरफ सारा बहाव होने की वजह से उधर शरीर बाकी अंगों में ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, और वहां पे ऐसा कहते हैं कि कई हजार बिच्छू जैसे काटते हैं उस तरह की वेदना का अनुभव लेते लेते हृदय में उसकी तकलीफ होती है, और फिर वो जीव कहता है कि अभी मुझसे सहा नहीं जाता और मैं इसको अभी इस शरीर को छोड़ देता हूँ, कहीं और शरीर ढूंढता हूँ, और फिर उस शरीर को छोड़ देता है, वहां पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद शरीर में तो प्राण और सांस और शरीर तो छूट गया, लेकिन बाकी इंद्रिय जो होते, तो यहाँ पे कहते हैं कि जीव जो निकलता है शरीर से, उसके 17 अंग होते हैं, है ना, 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समाम। उसके बाद हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय होते हैं, और फिर हमारे मन और बुद्धि, इन 17 चीजों से लेके जीव जाता है। इनको याद रखने की जरूरत नहीं, इसके पीछे जाइएगा भी मत, ये खाली इंफॉर्मेशन है। और अगर आप मुझसे डिटेल में जाना कहेंगे तो मैं कहूँगा छोड़िए, आप इंटरनेट पे जाके ढूंढ लीजिए। पर ये चीज़ समझने लायक, इसके पीछे जाने लायक नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन क्या रखनी है कि मृत्यु के बारे में क्या होता है, कि इस वक्त जो मृत्यु हो चुकी है, तो जीव तो निकल चुका है, तो उसकी मन की अवस्था कैसी होती है, वो होता है एक तरफ से सुषुप्ति में। यूँ कहा गया है कि 1 साल तक वो जीव सुषुप्ति में रहता है। वहाँ पे वो सारी सुषुप्ति मतलब क्या, तो हमने जो हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं कही गई है, एक है जागृत, दूसरी है स्वप्न, और तीसरी है सुषुप्त। तो जागृत मतलब क्या, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे इंद्रिय, मेरे सेंसेस ये बाहर की तरफ एक्टिव है, शरीर भी एक्टिव है और बाहर की तरफ भी एक्टिव है। तो मन और सेंसेस दोनों चीजें एक्टिव है और बाहर की तरफ काम कर रही है, तो ये जागृत है। स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में मेरे सेंसेस, मेरा शरीर तो बंद है, सो रहा है, लेकिन मन अंदर के अंदर ही एक्टिव है, तो इसीलिए उसको स्वप्न कहा गया है। तो पहली स्थिति क्या थी, शरीर एक्टिव है, मन भी एक्टिव है, बाहर की तरफ है। दूसरा है कि मेरा शरीर इनएक्टिव है, लेकिन मेरे सेंसेस अंदर के अंदर ही एक्टिव है, राइट, इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल सेंसेस है। तो वो मन अंदर में ही कुछ तो देख रहा है, अपनी भावनाओं को देख रहा है, वो है स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में दोनों शांत हो जाते हैं, शरीर भी शांति से पड़ा है और मन भी शांति से पड़ा है। जैसे कभी एनेस्थीसिया दिया होगा या डीप स्लीप में है तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं, ये भी हमें कभी अवेयरनेस ही नहीं होता। जब अवेयरनेस होता है तो अवस्था खत्म हो जाती है, तो सुषुप्ति अवस्था कही गई। तो मृत्यु के वक्त भी ये अवस्था सुषुप्ति जैसे ही होती है कि आदमी करीब 1 साल तक ऐसा कहते हैं कि सुषुप्ति में रहता है। जैसे आप किसी को सुला दीजिए गहरी नींद 1 साल तक, उसको पता ही नहीं कि वो सोया है कि नहीं करके, और 1 साल के बाद उठा दीजिए, तो अगर उसको पूछेंगे तो क्या हुआ था, तो कुछ नहीं, मैं सोया था, बस कितने समय तक सोया था पता ही नहीं। हम जब उठते और घड़ी देखते तब पता चलता है कि हाँ इतनी गहरी नींद इतने समय तक सोए थे, वरना हमें कहाँ पता होता है ना कि गहरी नींद में कितने समय तक सोए, समय का पता ही नहीं होता। तो ऐसे ही 1 साल तक उसकी सुषुप्ति की अवस्था होती है, और उसके बाद फिर वो जो अपने सारे इंप्रेशन है उससे वो सपना देखता है, उस सपने में फिर वो सारा इमेजिन करता है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट, इस तरह का जर्नी कहा गया है। और फिर वो अपने जीव के लिए कोई शरीर ढूंढना चाहता है, तो वो कैसे ढूंढता है, तो ऐसे कहते हैं कि वो पहले वायु रूप होता है, वायु रूप से फिर जल रूप होता है, फिर जल बन के जमीन में आता है, जमीन से आके फिर वो किसी अनाज में जाता है, अनाज से जाके फिर वो किसी पुरुष के पेट में जाता है, पुरुष के पेट में जाके उस अनाज का वीर्य बनता है, वो वीर्य बन के फिर वो किसी स्त्री के गर्भ में जाता है, और उसके बाद फिर वो एक बच्चा बन के पैदा होता है। तो अपने माता पिता फिर वो इस तरह से ढूंढ लेता है ना। तो वो तो एक अलग कहानी हमने कभी और भी सुनी है कि किस तरह से जीव कॉम्पीट करके अपने माता पिता ढूंढता है, कभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वशिष्ठ में इसका रेफरेंस नहीं आया है, लेकिन ये कहीं पे हमने सुना है, पर ये सीक्वेंस बताया गया है। तो जीव का क्रिएशन, जीव वापस जन्म लेना जो है यहाँ पे, ये सपने से शुरू होता है। तो 2 तरह की कहानियां इसमें आती हैं। एक है कि वास्तव में जाके जीव बाहर निकलता है, जीव बाहर निकल के फिर उसने कहीं तो फॉर्म लिया, पानी बन के
और अनाज बन के, वीर्य बन के, शरीर लेके फिर से पैदा हुआ। ये एक सीक्वेंस कहा गया है। दूसरा सीक्वेंस कहा गया है कि मृत्यु के समय उसके जो चित्ताकाश है, उसका जो हृदयाकाश है, शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन वो आकाश तो वैसे ही रहता है। तो उस आकाश में ही वो अपना अगला जीवन देखना शुरू करता है और अपना फिर से ब्रह्मांड कहा गया है। ये दो बातें अलग अलग लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने जो ब्रह्मांड क्रिएट किया है, उस ब्रह्मांड के लिए भी उसको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करने के, हाँ मेरा ब्रह्मांड है, मेरा विश्व है। जैसे विदुरथ राजा की बात की जाए तो उसने एक्चुअली देखा कि हाँ वो बन चुका है करके, तो फिजिकल फॉर्म बनने के लिए, उसको वास्तव में आने के लिए ये सारे सीक्वेंस से जाना जरूरी होता है। तो देखता तो सपने में है, और सपने में ही ये सारा अनुभव करते 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 अपने आप को पैदा भी करता है और सब कुछ देखना भी शुरू कर देता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो कोई बात नहीं, हमें इसके अंदर जाना भी नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा, वो जो है, जो होना है सो होना है। यहाँ पे और एक बात कहूंगा, मृत्यु के समय हमने कही तो कल परसों ये बात आई थी कि मृत्यु के समय हमारी भावनाएं कौन सी होती है, और शायद मैंने कल ही कहा था, लीला रानी ने कहा था कि मृत्यु के समय जो इम्प्रेशन होता है, उस इम्प्रेशन की वजह से जो जीवन देखते हैं वही जीवन में अगला जीवन प्राप्त किया जाता है। तो ये मृत्यु के समय हमारे इम्प्रेशन क्या होने चाहिए और क्या वो हमारे कंट्रोल में होते हैं? तो एक बात पक्की तय कर लीजिए कि जिसके जो इम्प्रेशन हम जीवन भर रखते हैं ना, वही हमारे उस वक्त इम्प्रेशन बनेंगे। ये होगा नहीं कि जीवन में कुछ भी करें जीवन भर और अंतिम समय आया, पता चला तो चला, वरना तो मुझे विश्वास ही नहीं कि मुझे पता चलेगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है करके। लेकिन जब भी आएगा तो उस वक्त मैं ये सोचूंगा, वो सोचूंगा, और फिर उस तरह से जीवन प्राप्त करूंगा, ये होगा नहीं। इस बात को पक्का ध्यान में रख लीजिए। जो बार 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 इम्प्रेशंस लेके जा रहे हैं, जो विचार आपके मन में हमेशा आ रहे हैं, वही विचार आपके अंतिम क्षण में रहेंगे और उसी विचारों से आप आगे जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ नाम का महत्व दिया गया है। गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहो। मैं तो कहूँगा हर सांस में ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहो। आने वाली सांस ओम कहे, जाने वाली सांस नमः शिवाय कहे। बस ये बार बार कहे, आपके मन में कोई और विचार ही नहीं आएगा, खाली रहेगा। और जब मन खाली रहेगा ना, जिसके ऊपर कोई इम्प्रेशन ही नहीं है, तो वो कहेगा अगला जन्म कुछ नहीं, फिर मुक्ति मुक्ति मुक्ति, है ना। ये बात का ध्यान रहे कि हमारे इम्प्रेशंस लास्ट मोमेंट में नहीं होते। अगर आप इस्कॉन वालों को देखेंगे तो उनके हाथ में हमेशा माला रहती है, किधर भी जाएंगे बैठे रहेंगे, उनका चालू रहेगा जो हरे कृष्णा हरे राम का उनका मंत्र हमेशा चलते रहता है। कुछ बातें करेंगे, बात रुक गई तो फिर से मंत्र चालू हो गए। तो यही बात है, मृत्यु कब आएगी पता नहीं। तो इसलिए उस क्षण तक कुछ छोड़िए मत। जीवन में प्रायोरिटीज एकदम क्लियर रखनी चाहिए, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन है ना, वो ये सारी चीजें पढ़े और समझे कि क्या हो सकता है। तो प्रायोरिटी एकदम क्लियर है। ये आजू बाजू के दुनिया में लोगों में उलझना है या अपने आप में संभलना है? अपने आप में संभलना है तो फिर नाम चालू रखो, मंत्र चालू रखो, ज्ञान में रहो, वरना तो दुनिया में भटकते रहोगे इधर उधर। आज एक है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, बह गए, खत्म, कुछ मिला ही नहीं करके, ठीक है। तो अंतिम क्षण में हमारे विचार कैसे होने चाहिए? तो विचार ही नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमारे मन को हमेशा खाली रखने की कोशिश करें। और खाली कैसे रखते हैं? तो सांस के माध्यम से। सांस के माध्यम में अपने सांस को किसी मंत्र से जोड़ दीजिए, तो बस सांस हमेशा अपने आप में रहेगी, मन खाली रहेगा। 8:34 हो चुके हैं सोमेश्वर जी, तो मेरे ख्याल से रुकना चाहिए और आगे की बातें मैं कल करूंगा फिर से। कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं जरूर। दिस इज रियली अमेजिंग। जो यतीन जी ने कुछ बातें कही ना, देखो प्रैक्टिकल अनुभव इट्स हैपनिंग अराउंड। तो उसी के साथ आपके साथ सबके साथ उसको शेयर करता हूँ। तो देखो आज के जो टॉपिक है ना, जो यतीन जी ने बताया, उसमें 3-4 चीजें बहुत प्रोमिनेंटली हमने सुनी। तो एक तो बात कही यतीन जी ने अबाउट मृत्यु के जो गहन गूढ़ ज्ञान है, तो उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया अपने प्रयत्न से या अपने कर्म से, उन्होंने अपने साथ शेयर किया। तो उसमें उन्होंने एक टाइम जोन चेंज की भी बात कही थी। तो और मैंने जैसे कल या परसों शेयर भी किया था आपके साथ कि सोहम जो मेरा 10 साल का बच्चा है, उसने अभी ये बुक पढ़ना शुरू कर दिया है। बुक का नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में बेसिकली गुरुदेव की कमेंट्री है और उसी को इसके अंदर लिखा गया है।
तो इसमें बात आती है मृत्यु की। जो नचिकेता होता है वो बोलता है कि अपने वाजेश श्रवास जो होते हैं उनको बोलता है कि मुझे आप अर्पण कर दो, तो वो ऐसे ही कुछ होता है, गुस्से में आके बोल देते कि ठीक है, आई ऑफर यू टू द डेथ, बोलते मैं तुझे मृत्यु को प्रदान कर देता हूँ, ऐसे उसको बोल देते हैं। बट वाजेश श्रवास इज साधक, तो वो उनके मुंह निकला हुआ प्रश्न जो होता है, जो वाक्य होता है, वो तो सच हो जाता है ना, तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। द मोमेंट वाजेश श्रवास इसको बोलते हैं उसी क्षण वो लेट जाता है, नचिकेता लेट जाता है। लेकिन वो जब जाता है, मतलब आफ्टर डेथ वाला जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है नचिकेता का एक्सपीरियंस, वो फिर जाता है, वो यमा के पास जाता है, देन वहां पे वो वेट करता है, 3 दिन के लिए वेट करता है। एंड बोलते हैं, यमा बोलते इट्स नॉट योर टाइम, तुम्हारा तो टाइम नहीं आया है, तुम अपने आप को लौट के जाओ। तो यहाँ पे सारी चीजें जो यतीन जी ने भी नहीं बताई ना, कि जो मृत्यु होती है, इंसान की मृत्यु होती है, तो क्या होता है उसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू बुक, यस्टरडे पढ़ा, सो हमने बैठ के पढ़वाया मुझे, उसने लिटरली कल ये बात हुआ जो अभी यतीन बात कर रहे थे। सो हाउ इट इज रिलेवेंट अपने लाइफ में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कैसे चीजें चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अपना जो पंचेंद्रिय, जैसे यतीन जी ने भी बताया, तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो छूटता है। तो अपने शरीर होता है, वो शरीर से प्राण निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे जो अपना सेंस ऑफ साइट होता है, विजन होता है, वो छूट जाता है। देन अपने को गंध आनी बंद हो जाती है। देन करते से सबसे आखिरी में वो जो साउंड होता है वो बंद हो जाता है। एंड देन ये भी बोलते हैं कि जो सोल होता है ना, वो सडनली जाता नहीं है वहां से, उसको छूटता नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने वो प्रक्रिया बताई कि 3 दिन के लिए वो रहता है अराउंड। इसलिए बोलते हैं वो कैंडल जलाते हैं, वो लाइट जलाते हैं, क्यों? ताकि वो सोल को दिखे कि आई एम लाइट, मैं प्रकाश, मैं प्रकाश की तरह हूँ। और जो आप जो उसमें अनुभव करते हैं, वो अनुभव के वो सोल देख रहा होता है सारी चीजें। और उसलिए बोलते हैं वो 3 दिन तक यू फील दैट एंग्विश, उसके प्रेजेंस की वजह से वो एंग्विश सबको लगता है। एंड देन उसको बोलते हैं कि अपने इसमें ऐसे लिख के रखा है कि 10 days तक यू डू ऑल दिस थिंग्स, ऑन द 11th day you celebrate all these things. They celebrate करते हैं, it's all fine now, he has gone to the abode, let's do शांति, ओम नमः शिवाय, शांति शांति शांति। दूसरी जो बात यतीन जी ने कही अबाउट लिविंग दिस वर्ल्ड, जब हम लोग इस जग को छोड़ते हैं, और उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी अभी हमारी जिंदगी में हुआ है। मधु के मामा और मामी आर नो मोर, जस्ट 1 महीने के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मामी का देहांत हो गया, जस्ट एग्जैक्टली तीसरे दिन मामा चेयर पे बैठे, जो उनके नाती पोता पोती थे, उनको बताया उन्होंने कि यहाँ पे आप दिया जलाओ। दिया जलाया उन्होंने, ये कुर्सी पे बैठे हुए, और उनको बोला ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू करो। उन्होंने ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू किया, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ये कुर्सी पे बैठे हैं, एंड बैठे बैठे ही 87 ईयर ओल्ड, हाँ 87 साल उनकी उम्र थी, और 87 ईयर ओल्ड, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, एंड ही टुक ऑफ। तो जो बोलते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं, वो कैसे अपना शरीर छोड़ते हैं, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को कुछ नहीं, आराम से कुर्सी पे बैठ के दिया जला के, बोल के दिया जलाओ, ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू करो, और ही टुक ऑफ, ही इज नो मोर नाउ। क्या बोल सकते कि मृत्यु है तो मृत्यु, लेकिन देखो किस तरह से ही टुक ऑफ। रियल लाइफ हमारी जिंदगी में अभी अभी घटना ये घटी है, सो आई एम शेयरिंग दैट विथ यू रिलेटेड टू मृत्यु। सेकंड चीज यतीन जी ने बात की इज अबाउट अ बर्थ, कि बर्थ इंसान कैसे लेता है और कैसे अपने माता पिता को ढूंढता है। तो अगेन सोहम पिक्चर में आ जाता है, सोहम की स्टोरी में बर्थ की आपको बताता हूँ कि, और कैसे गर्भ संस्कार मैटर करते हैं। उसने वो सुधा मूर्ति का जो बुक पढ़ा है ना, जो सरफंट रिवेंज वगैरह, उसमें फिर वो अभिमन्यु की बात आती है, तो उसके मम्मी को पूछता है, फिर वो अभिमन्यु को कैसे सब याद रहता है, बोलता मेरे को कैसे याद नहीं। तो उसको याद दिलानी पड़ती है, बेटा ऐसा नहीं कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे जो नक्शे कदम पे तुम चलते हुए दिखाई देते हो, पता लगता है कि यस याद है तुम्हें, जो कुछ भी तुम्हें गर्भ संस्कार मिले हैं। बिकॉज उसकी मम्मी ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, एवरीडे वो भजन और गुरुदेव के नॉलेज टॉक सुनती थी, उसने एडवांस कोर्स तक कर लिया व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। जो कैसे बच्चा पैदा होता है और कैसे चूज करता है ना, कैसे अपने कॉन्शियसनेस को चूज करता है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सोहम का बर्थ है। सोहम का जब जन्म हुआ ना, तो ही वाज इन सांगली, सांगली में एक डॉक्टर शिंत्रे करके हॉस्पिटल है, वहां पे उसका जन्म हुआ है। एंड जस्ट नेक्स्ट लाइक 3rd लेन में गुरुदेव वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज बर्थ।
आपको जान के अमेजिंग लगेगा, गुरुदेव हैव नेवर विजिटेड सांगली इन हिज लाइफ। गुरुदेव नेवर एवर विजिटेड सांगली इन हिज लाइफ। और 17 जनवरी को उसका जन्म हुआ है। गुरुदेव कॉन्शियसनेस, गुरुदेव वाज प्रेजेंट। सोहम ने जब जन्म लिया, गुरुदेव वहां पे प्रेजेंट है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट उसके बाद में कभी गुरुदेव ने सांगली विजिट नहीं किया। इट वाज द ओनली टाइम जब सोहम का जन्म हुआ, तब गुरुदेव वहां पे प्रेजेंट है सांगली में। कई बार जब इसके बारे में बात करते तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन दैट इज द एक्सपीरियंस। हम लोग देखते हैं कि कैसे। अच्छा, और एक चीजें मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ सोहम के जन्म के वक्त। क्या हुआ, अपने इंडिया में, बाहर के कंट्रीज में इट्स वेरी कॉमन कि आप डिलीवरी रूम में जाके बैठ सकते हो। आई वॉज देयर एक्चुअली। वहां पे जो नर्सेस थी, उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात किया, 2-3 दिन में उन्होंने देखा, तो बोलते हैं कि कुछ अलग ही है सर, हम कभी नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन आप जाके बैठ सकते हो। मेरा वाइफ का नाम मधु है, एंड आप उसके साथ जाके बैठ सकते हो। तो अराउंड 4:30 बजे, मतलब 4 बजे से लेके सुबह का टाइम था, 4 बजे से लेके आई वॉज देयर विथ मधु, एंड शी वॉज अंडर गोइंग थ्रू लेबर पेन एंड ऑल दैट। एंड एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे अराउंड 4:05 या 4:10 बजे होगा, उसने बोला सोमेश्वर आई एम नॉट एबल टू बी एट दिस, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है। तो देन मेरे पास वो मोबाइल था। देखो मोबाइल, मैंने टेक्नोलॉजी भी कैसे होती है, एंड मैंने उसके ऊपर लिंगाष्टकम चालू किया, एंड करीबन 4:15 से लेके अराउंड 5 तक कंटिन्यूअसली लिंगाष्टकम चल रहा था। एंड आफ्टर 5 डॉक्टर एंटर्ड द रूम, आई केम आउट। 5:20 पे सोहम का जन्म हुआ। लिंगाष्टकम सुन के बंदा ने जन्म लिया है। एंड देन फिर वो आगे की उसकी जर्नी जो चालू रहती है। अराउंड 3 साल का बच्चा होता है, और मम्मी उसकी मधु कुछ गुस्से में आके उसको बोलते कि कितना तकलीफ देगा मेरे को, क्या कर देगा, कहाँ से आया है तू। तो उसका वर्ड देखो, 3 साल का बच्चा क्या बोलता है अपनी मम्मी को, मैं तुम्हारा भोग हूँ बोलता है। एंड ही बिकम साइलेंट आफ्टर दैट। 3 साल के बच्चे को भोग वर्ड कैसे पता चल सकता है। 4 साल का बच्चा गुरुदेव जन्म ले लेते हैं और अपना भगवत गीता को पूरा रिसाइट कर देते हैं। यहाँ पे 3 साल का बच्चा बोलता है मैं तुम्हारा भोग हूँ। शिव महापुराण 10 साल का बच्चा है, अब तक 4 बार पढ़ चुका है। और 10 साल का है भी, आज को रात को लेके कठोपनिषद पढ़ रहा है। मृत्यु, डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ की बातें चल रही है। एकेडमिक एक्सेलेंस की बात तो छोड़ दो, अलग ही है। मैं उसके बारे में बहस भी नहीं करना चाहता और अप्रिशिएट भी नहीं करता, बिकॉज़ वो सब्जेक्ट नहीं है अपना आज का। तो ये जो बोलते हैं ना कि वो अपने पेरेंट्स चूज करते हैं, अपने गुरु चूज करते हैं, गुरु जैसे अपने शिष्यों को चूज करते हैं, उसका लाइव एग्जांपल इस बच्चे के रूप में हम लोग अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मास्टर एंड हैविंग सोहम इन आवर लाइफ। उसको जब फर्स्ट टाइम पूछा ना, अपनी विंडो थी, उसको विंडो से जो एरोप्लेन गुजरते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत छोटा था वो, तो उसको बोला फर्स्ट टाइम अगर तुम एरोप्लेन में बैठोगे तो कहाँ पे जाना चाहते हो। तो बच्चा बोलता है मेरे को बैंगलोर आश्रम जाना है। अरे कैसे उसको पता है बैंगलोर आश्रम जाना है, और बैंगलोर आश्रम जाता भी है, फ्लाइट से ही जाता है। बैंगलोर आश्रम में जैसे ही कदम रखता है, ही स्टार्ट डूइंग ऑल द योगासनास। वहाँ के जो स्वामी जी वगैरह जो गुजरते हैं ना, उसको देखते हैं कि ये कैसे, कहाँ से उसको हु टॉट हिम ऑल दिस थिंग्स। दिस रियली अमेजिंग। देखने में ये सब कुछ है ना, अनुभव करने में दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये चेतना के स्तर पे जो बातें होती है, ये ऐसे होती है कहीं पे तो अनुभव हो रहा है। तो रियली थैंकफुल टू यतीन फॉर शेयरिंग these experiences with us and seeing all these things practically in our life. Such an amazing experience. We'll continue. जिनको इसको जानना है ना मृत्यु के बारे में, तो जरूर आप इसको, वो किताब को मंगा सकते हैं। कठोपनिषद, गुरुदेव की कमेंट्री। गुरुदेव लिटरली अपने लाइफ के बारे में इसको बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या, कैसे भानु दीदी बोलती है कि जब वो फेल हो जाती है तो बोलती है मैं फेल हो गई। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके जीवन के यहाँ पे अपने को पढ़ने को मिलती है। एंड टॉक्स अबाउट दिस उच्च ज्ञान, जो परम ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान जिसको बोल सकते हैं, इसके बारे में समझ रहे। एंड वही ज्ञान अपने को आज यतीन जी से भी सुनने को मिला है। So really grateful to you, Yatin. Thank you so much for accepting our request and being with us. Now, with that note, I want to open this session for our audience. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो बोलते हैं यतीन जी हमें तो बता रहे थे, जरूर आप प्रश्न पूछो। आज हमें योग वशिष्ठ का ज्ञान मिला बिकॉज प्रभु रामचंद्र जी ने प्रश्न उठाए। तो प्रश्न पूछो, इट इज योर बर्थ राइट। आप जरूर प्रश्न पूछो, तभी संत अपना मुंह खोलते हैं, तभी कुछ बोलते हैं, तभी ज्ञान अर्जित होता है। प्लीज फील फ्री ऑल ऑडियंस, आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ, सोमेश्वर की जय गुरुदेव।
वो आपने जो बच्चे के बारे में, आपके बच्चे के बारे में बताया ना, वो बहुत अमेजिंग है। तो वो हमारे गुजराती में बोलते हैं, मोरना इंडा ने चीतरवा ना पड़े, मतलब आप ही ऐसे हो तो आपका बच्चा कैसे होगा, ऐसा ही होगा ना। तो वो फिर जो आपने बताया ना कि उसकी मम्मी ने बोला कि कहाँ से आया है ऐसा, तो उसने बोला क्या कहाँ से आया है, भोग से, क्या मुझे समझ में नहीं आया। वो एक्चुअली गुस्सा कर रही थी ना उसके ऊपर, तो बोलते क्या है तुम, ये बोलते थे क्या, तो बोलते मैं तुम्हारा भोग हूँ। भोग माने का मतलब इसको लाइक भोग वर्ड भी उसको कैसे पता है, भोग का मीनिंग होता है तुम्हारा, यतीन जी कैन आल्सो टॉक मोर अबाउट भोग, लेकिन बोलते हैं कि तुम्हारा जो कर्म है, जो भी तुम्हारा ये है, उसका में तुम्हें फल मिला हो। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। और उसका ऐसा भी तुम्हारे अंदर की डिजायर भी हो सकता है ना। हाँ, यतीन जी, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट भोग इज, कैसे वो? भोग तो यही है ना, देखो आम भाषा में भोग ये कहते हैं कि मेरे जो कर्मों के फल है, बस वो मैं जो भुगत रहा हूँ वो मेरे भोग है ना। अच्छा, वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, तो कर्मों के फल, तो अच्छे कर्मों के फलों को भी भोग ही है। अगर मैं अपने जीवन में बहुत सुख पा रहा हूँ तो वो भी भोग ही है। और दूसरा एक भोग का अर्थ प्रसाद भी होता है, हिंदी में जब समझ गए, भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, तो दोनों एंगल से वो देखा जाए तो अच्छा ही है। उसने शायद पता नहीं माँ ने किस तरह से लिया होगा, लेकिन इसने अच्छे से कहा होगा कि तुम्हारे अच्छे कर्म हुए हैं इसलिए मेरे जैसा बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है, तो एक्सेप्ट कर लो। क्यों गुस्सा करती हो, गलत तरीके से मत देखो, ऐसा उसने कहा होगा। इतना इतना छोटा बच्चा है और ऐसा बोल रहा है, इतना अमेजिंग है। हम लोग सिर्फ अभी यतीन जी आश्चर्य कर सकते हैं शिवाजी, और वो जब ऐसे बातें करता है ना, अक्सर उसका पता नहीं क्या होता है उसको, और रात के समय सोते समय ये ज्ञान के डोसेस देता है हमें। अष्टावक्र जैसे चल रहा था, गुरुदेव वो जो बोल रहा था रात में ना, दूसरे दिन गुरुदेव वही बोल रहे थे, वही चीज। वो बच्चा कैसे बोल, आई मीन ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है लाइफ में कि जो वो बोल रहा है दूसरे दिन गुरुदेव के अष्टावक्र में वही बोल रहे हैं। एंड हमने चेष्टा भी की थी, ये प्रयत्न किया था, हम लोग को आदत होती है ना कि चलो इसको कैप्चर कर ले मोबाइल में, तो मैंने मोबाइल में उसको रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो उसने मोबाइल ऐसे छीन के साइड में रख लिया, बोलता है दिस इज अवेलेबल ओनली टू दोज, ये लिटिल वर्ड्स है उसके, दिस इज अवेलेबल टू ओनली टू दोज हु आर इन द विसिनिटी ऑफ सोल। देखो अमेजिंग सेंटेंस है, उसने किस पर्सपेक्टिव से बोला वी डोंट नो, बट बोलता है ये ज्ञान उनको ही प्राप्त है जो सोहम के विसिनिटी में है, जो सोहम को प्राप्त कर चुके हैं, जो सोहम को समझ चुके हैं अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में ये ज्ञान होता ही है। बोले इसको रिकॉर्ड कट करने की कोई जरूरत नहीं। बढ़िया, बहुत अमेजिंग। अच्छा, यतीन जी को मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपने बताया ना कि जो भक्ति के मार्ग में है या जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका मृत्यु ऐसे ही हो जाता है, उनको भी तकलीफ नहीं होती है, औरों को भी नहीं होती है। सुनाई दे रहा है ना यतीन जी? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे मतलब कुछ साधना वाधना नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनका डेथ एकदम नेचुरली, मतलब कुछ तकलीफ के बिना हो जाता है। और जो संत लेवल के लोग हैं, जो साधना पे डीप लेवल पे, उनको जैसे कैंसर जैसा बीमारी में जूझते हैं और फिर डेथ होता है, ऐसा भी देखा गया है। मैंने कहा वो पॉसिबिलिटीज ही है, जिसमें अगर देखा जाए तो, क्योंकि ना कुछ हम जो देख रहे हैं वो हमें जो दिखाई दे रहा है उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा। जो विश्व हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, उनका पहले का हिस्ट्री क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता। पता नहीं क्या क्या लेके आए, वो भी शायद भोग ही हो गए, हो सकता है। और कहते हैं ना कि जब जन्म लेते हैं तो वो तय करके आते हैं कि कुछ जो भी कर्म है वो ऐसे ऐसे काटेंगे, मतलब वो तय करके जीव आता है। हाँ, पर हमने प्रयत्नों के बारे में देखा है, तय करके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाग्य वहीं पे फिक्स है। उसको बदलने की क्षमता हमें होती है हमेशा। ठीक है, वो हम अगले कुछ सेशंस में देखेंगे कि जो हमारे दुख होते हैं उनको किस तरह से कम किया जा सके। हाँ, दुख आएंगे, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट तो सभी लोग कहते हैं कि गुरु आपके दुख शायद दूर नहीं करेंगे, लेकिन उनको सहने की शक्ति जरूर दे देंगे आपको। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर बात करेंगे अगले 1-2 सेशन में। और फिर आपने डेथ के बारे में और फिर बर्थ के बारे में बताया, तो एक बार गुरुजी को मैंने सुना था कि जैसे जो भी मृत्यु हो जाती है, फिर जब नया जन्म लेना होता है तब सारी आत्माएं दौड़ती है वो गर्भ लेने के लिए,
और मतलब ऐसे बोलते हैं ना, रश करते हैं कि किसी गर्भ में जाने के लिए। फिर ऐसा भी होता है कि एक मतलब सोल है, वो किसी गर्भ में चला जाता है तो दूसरा सोल आके उसको निकाल के फिर वो अंदर आ जाता है। ऐसा गुरु जी ने से सुना था मैंने। हाँ, योग वशिष्ठ में ऐसा कुछ बताया नहीं है। अच्छा तो अच्छा, और फिर वो सोल कितने महीने में आता है? कहते हैं 5 महीने में आता है जीव अंदर। देखिए, योग वशिष्ठ में ये भी नहीं बताया गया, लेकिन ये चीज कही गई है कि वो कभी कभी भी आ सकता है, और शुरू में भी हो सकता है, 9th महीने तक भी हो सकता है। तो उसका कुछ ये नहीं बताया नहीं है। कभी कभी वो जो आपने कहा रिप्लेसमेंट होता है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि गर्भ में जब आना शुरू होता है ना, तो उसका एक सीक्वेंस है कि कौन से वो जीव अपने आप को देखना शुरू करता है अंदर ही अंदर, कि हाँ भी मुझे देखना है, तो मेरी आंखें आ जाएंगी, फिर मेरे हाथ आ जाएंगे, मेरा हृदय आ जाएगा, मेरा मस्तिष्क आ जाएगा, हाँ मेरे विचार आएंगे, मन आएगा। ये सारा क्रिएशन अंदर ही अंदर होना शुरू होता है। पर ये हो सकता है कि उसने एक बॉडी फिजिकल फॉर्म लेना शुरू किया, और जैसे आपने कहा कि एक जीव के बदले दूसरा जीव आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ही जीव कंटिन्यू कर सकता है, वो भी हो सकता है। तो या फिर बाद में भी जीव आ सकता है, शरीर की डेवलपमेंट ऐसी हो रही है, वो भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज ऑप्शंस है। योग वशिष्ठ में गर्भ में क्या होता है इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, ये गुरु जी का ही ज्ञान है। और फिर कल कल और परसों मतलब डे बिफोर ये जो चर्चा हो रही थी कि दुख सुख या जो भी कर्म कर्म के बारे में इसमें जो बताया गया, तो ऐसे बोलते हैं ना कि विष्णु जी जब लेटे हुए थे नदी में, तब वो मधु और कैटप उनके कान से निकले थे, है ना? हाँ। तो मतलब राग द्वेष का वो निकले थे, पहले नहीं थे, बाद में निकले थे। और एक बार एक बाजू में भगवान ऐसे भी बोल रहे हैं, जब जब मतलब अधर्म बढ़ेगा पृथ्वी पे, तो मैं संतों का जब वो हास होगा, मतलब उनको हानि होगी, तब तब मैं जन्म लूंगा। तो एक बार तो वो सर्वशक्तिमान होने के बावजूद ये मधु और कैटप को जन्म मतलब निकलने देते हैं अपने कानों से। और फिर दूसरी बार वो वैसे भी बोलते हैं कि जब जब अधर्म का बढ़ जाएगा, तब तब मैं जन्म लूंगा, मैं आऊंगा सब ठीक करने के लिए। तो वो सर्वशक्तिमान थे, तो उन्होंने क्यों अपने कानों से ये मधु और कैटप को निकलने दिया? खेल उनका खेल होता है, तो बैलेंस बन के रहना चाहिए। जब ये क्रिएशन है ना, तो उसमें अगर सभी अच्छे रहेंगे तो उस अच्छाई को मतलब नहीं रहता, अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री। तो दूसरों को भी आना चाहिए, वो भगवान की ये होता है। राक्षस भी भगवान का ही क्रिएशन है, और हम भी देव भी भगवान का ही क्रिएशन है। लेकिन ये तो चक्कर चलता ही रहता है, बुराई का भलाई का, बुराई का भलाई का, ये कांस्टेंट जैसा साइकिल जैसा है। ये हमको समझना है। इसके बारे में एक आगे उपशम प्रकरण में कहानी है भक्त प्रहलाद की, तो उसमें ये पोर्शन आया है कि राक्षस और देव, इनका अस्तित्व क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में और हाँ, और आपने अभी ये जब बोला ना कि जो इम्प्रेशंस के बारे में बोला, जैसे मतलब ऐसे मन में कुछ विचार जैसे आने ही नहीं देना है, तो जैसे वो एक मंत्र ले लो, ओम और नमः शिवाय, श्वास के साथ ओम, और वो बढ़िया लगा मुझे। लेकिन ये मन इतना वो चंचल है और इतना वो बंदर जैसा है कि वो उसको हैंडल कर रहा है ऐसे कांस्टेंट। ये कुछ विचार तो बन ही जाते हैं, इतना मुश्किल होता है कि ये सब जानते हैं, फिर भी वो उसको अमल में रखना ये बहुत टफ है। वहीं पे तो प्रयत्न आते हैं ना, तो आप प्रयत्न करिए। ये जो मुक्ति, सबकी मुक्ति की चाह होती है, ठीक है, लेकिन ये मुक्ति की चाह में ये हिंड्रेंस मन ही आता है, और ये बार बार ये इसको प्रयत्न करते, फिर भी बार बार वो मन इतना वो बंदर जैसा है कि वो चला ही जाता है, चाहे जितना भी पकड़ के उसको बिठाओ। वही है, सांस के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। ठीक है, उस पे ध्यान दें, अपने सांस पे ध्यान दें, अपने आप मन नियंत्रण में आ जाएगा। होता है। गुड, ठीक है। और कोई है क्या किसी? हाँ, अच्छा, और कोई प्रश्न है? कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं।
इफ नॉट आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे योग श्रृंखला की 12वें कड़ी में। इसी नोट के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, मैं और यतीम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।